If becoming a cabin crew member is a dream, then the first thing you need to know is whether you are eligible. So today we'll go through the basic cabin crew eligibility criteria, including age, education, communication skills, grooming and more. Let's start with the basic requirement, that is age. For many airlines, cabin crew recruitment starts from 18 years of age, especially for fresher. So if you are below 18, you won't be eligible for the position of cabin crew. Any female Indian national who is between 18 to 27 years of age can easily apply for this position. और अगर आप अभी 18 के नहीं हुए हो, don't worry, you can use this time to work on your English, communication, grooming and confidence, so that when you become eligible, you are already prepared. Next is educational qualification. A candidate must have passed 10th and 12th from a recognized board or university. And of course, if you have completed your graduation, that is absolutely fine too. But you do not need to think that you have to do a special aviation course or degree just to become a cabin crew member, because this is something many aspirants unnecessarily worry about कि क्या हमें कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की नीड होती है, कि कोई एविएशन कोर्स करना इंपॉर्टेंट होता है क्या. तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट 12th के बाद इंटरव्यू के लिए जा सकते हो. Now let's talk about something that is extremely important during selection process, that is communication skills. You need to be able to communicate clearly and confidently, because fluency and clarity of speech in both English and Hindi are very important. काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे क्या हिंदी भी इम्पॉर्टेंट होती है. तो हिंदी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होती है. अगर आपको हिंदी नहीं आती होगी अच्छे से, और अगर आप हिंदी में अच्छे से बात नहीं कर पा रहे होगे, तो आपको वो नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको कैबिन क्रू बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, fluency doesn't mean using complicated English or have a foreign accent. What matters is whether you are able to express yourself clearly. So instead of learning fancy vocabulary, focus on basic grammar, clear pronunciation and confidence. और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 1-2 दिन में पूरी अच्छे तरीके से आ जाए. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी. तो आप डेली किसी के साथ 15-20 मिनट ज़रूर बात किया करो. इट विल रियली हेल्प यू. Now let's come to the one of the most frequently asked question, height and weight. On Indigo website, the minimum height requirement for a female cabin crew member is 155 centimeters and your weight should be proportionate to your BMI. अब जिन लोग को ये नहीं पता कि BMI क्या होता है, it stands for Body Mass Index. या आप बहुत ही ईजिली गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हो. आपको बस गूगल पे जाके BMI कैलकुलेटर लिखना है और आप वहाँ पे अपना हाइट वेट लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका BMI सही है या नहीं. द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस. Cabin crew is a customer facing role, so airlines expect candidates to look professional and well groomed. So whenever you are going for your interview, pay attention to small things like your hairstyle, nail paint, watch, makeup, etc. But grooming isn't only about makeup. Your posture, smile, eye contact, walking style and your overall body language is also part of your presentation. आपको एक्सपेंसिव नहीं, प्रेजेंटेबल दिखना है, तो आपको मेकअप प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. Now let's talk about tattoos and scars. This is another question that I get quite often. अगर आपको कहीं भी स्कार या टैटू है आपकी बॉडी पे तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो. अगर वो स्कार या टैटू आपके यूनिफॉर्म पहनने के बाद विजिबल नहीं रहने वाला है तो वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है. लेकिन आपकी बॉडी पे अगर कहीं भी ऐसी जगह स्कार या कोई भी टैटू है जो आपके यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी विजिबल रहेगा तो आप उसको एक बार कंसील करने का ट्राई करो. अगर वो कंसील हो जा रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कंसील हो पा रहा है तो आप फिर भी एक बार इंटरव्यू में जाओ और वहाँ देखो कि उस स्कार या टैटू के लिए HR या जो मेडिकल राउंड में मैम रहेंगी वो क्या बोलती हैं. लेकिन बिना ट्राई किए बस ये घर पे मत सोच के बैठ जाओ कि मेरे तो स्कार है, मेरे तो टैटू है, तो मैं तो रिजेक्ट ही होने वाली हूँ. सो प्लीज़ गो एंड जस्ट ट्राई वंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पासपोर्ट. दिस इज़ समथिंग दैट कन्फ्यूजेज अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पासपोर्ट ले जाना ज़रूरी है, पासपोर्ट होना ज़रूरी है, बिना पासपोर्ट के हम इंटरव्यू नहीं दे सकते क्या. तो आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका पासपोर्ट उतना मैंडेटरी नहीं होता है. आप बिना पासपोर्ट के भी इंटरव्यू देने जा सकते हो, लेकिन इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू तो आपको तुरंत ही अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है ताकि आपके ज्वाइनिंग डेट तक आपके पास आपका पासपोर्ट आ जाए. बट ऑलवेज रिमेंबर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरी एयरलाइन. इसीलिए किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर से चेक कर लें. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ फॉलो एंड लाइक, and I'll see you in the next one. Bye.